Good morning to all of you. How are you all? Hope so that you are safe and sound and good by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Like yesterday in the last lecture, we have read about the osmosis. Now open your books. I have also given you few questions to solve. Let's check the answer of these questions first. Then we will move over today's topic. Okay. On here, open page number 22. Here is the question of test yourself. Okay, and number 1 is what is osmosis? Osmosis क्या है? Here is the answer. The movement of water molecule from a region of higher concentration to a region of lower concentration across a partially permeable membrane is known as osmosis. Okay, here is the answer. Okay, number 2, explain why osmosis is a special kind of diffusion. Osmosis special kind of diffusion क्यों है? Explain करें. Here is the answer. Osmosis is a special kind of diffusion. Why को काटते हैं? Because लिखते हैं. Because diffusion can describe the movement of any kind of molecule, while osmosis is only about the movement of water. Okay, that's why osmosis is a special kind of diffusion. Okay, now come to the question number 3. What is partially permeable membrane? Partially permeable membrane क्या है? Answer is a partially permeable membrane has a very thin holes in it which only allow some molecules to pass through. Okay, some की जगह water molecules to pass through. Okay, ये है partially permeable membrane, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है पास होने में. नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई द लिक्विड राइजेज अप इन द ट्यूब इन द एक्सपेरिमेंट शोन ऑन टॉप ऑफ पेज. इस एक्सपेरिमेंट में लिक्विड जो है वो ट्यूब में क्यों राइज होता है? Here is the answer. The concentration of water is higher in the weak sugar solution than in the strong sugar solution. Full stop. Water therefore move by osmosis into the bag tied to the glass tubing, causing the volume to rise and so move the solution up the tubing. This is the answer of question number 4. Okay, now let's start our today's topic. आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. Now open on page number 23. Topic is transpiration. Okay, and now let's start the reading. Transpiration is the process by which a plant loses water from its leaf into the surrounding air. Transpiration वो process है जिसके ज़रिए plant जो है पानी लॉस करता है from its leaves में से into the surrounding air, अपनी surrounding में. ठीक है, the water evaporates from cell inside the leaf. वाटर कहाँ से evaporate होता है? inside the leaves. सेल से inside the leaf, उन सेल से जो पत्तों के अंदर होते हैं. वाटर वेपर then passes out of the leaf mainly through the tiny holes called stromata. वाटर वेपर्स then pass out of the leaf, यानी कि बाहर निकलते हैं लीफ से. किसके ज़रिए? टाइनी होल्स हैं लीव्स में जिसे स्ट्रोमेटा कहा जाता है. स्ट्रोमेटा आर मोस्टली फाउंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ. लीफ के निचले हिस्से में क्या पाया जाता है? स्ट्रोमेटा मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स के निचले हिस्से में. ठीक है, बॉटम पार्ट में. ओके, हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ स्ट्रोमेटा. ओके, कर्व गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स हैं, स्ट्रोमेटा को ओपन एंड क्लोज होने में हेल्प करते हैं. ठीक है, स्ट्रेट गार्ड सेल्स होंगे, स्ट्रेट होंगे गार्ड सेल तो स्ट्रोमेटा क्लोज होगा, ओपन होगा. कर्व्ड होंगे तो स्ट्रोमेटा ओपन हो जाएगा. ठीक है. When a plant has plenty of water, the pressure inside the guard cell rises and stromata will open. क्या होता है? प्लांट के अंदर जब ज़्यादा पानी होता है, प्रेशर जो गार्ड सेल पर है प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोमेटा ओपन हो जाते हैं. ओपन स्ट्रोमेटा अलाउज मोर ट्रांसपायरेशन, ज़्यादा ट्रांसपायरेशन. ओपन स्ट्रोमेटा के ज़रिए ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होती है. ठीक है. क्लोज स्ट्रोमेटा, however when guard cell lost water, जब गार्ड सेल में से पानी ख़त्म हो जाता है, द प्रेशर इनसाइड फॉल्स, और उनके अंदर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है. एंड द स्ट्रोमेटा विल क्लोज. स्ट्रोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं. क्लोज स्ट्रोमेटा स्लो डाउन ट्रांसपायरेशन. क्लोज स्ट्रोमेटा की वजह से ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है. ओके, कंट्रोलिंग ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करना. कौन कंट्रोल करता है? अगेन ट्रांसपायरेशन को स्ट्रोमेटा कंट्रोल करते हैं.
Each stoma is surrounded by 2 sausage-shaped guard cell. 2 sausage-shaped guard cell यानी कि हर स्टोमेटा को के इर्द गिर्द को सराउंड किसने किया होता है? 2 सॉसेज शेप गार्ड सेल। आपने सॉसेज देखी हो तो इसी शेप की होती है, ठीक है, वो ज़रा स्ट्रेट होती है लाइक दिस, ओके, ठीक। तो सॉसेज शेप्ड है, ठीक है, गार्ड सेल है और ईच स्टोमेटा के सराउंड में, ठीक है। विच कंट्रोल द साइज ऑफ होल, जो कंट्रोल कर रहा है साइज ऑफ होल को, यानी कि स्टोमेटा के साइज, होल के साइज को, ठीक है। व्हाट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन, क्या चीज़ें ट्रांसपायरेशन पर अफेक्ट कर सकती हैं, उनको देखते हैं हम। नंबर 1, द स्पीड और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कैन बी अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स। स्पीड और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन अफेक्ट होता है नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि कौन कौन सी चीज़ों से। नंबर 1 टेम्परेचर, दूसरा विंड ऑन, कितनी हवा चल रही है, मतलब आपकी हवा में नमी कितनी है, ह्यूमिडिटी, और टाइम ऑफ डे का टाइम, ठीक है। टाइम ऑफ डे यानी कि डे टाइम है या नाइट टाइम है। नाउ इसको कम्प्लीटली पढ़ते हैं। टेम्परेचर ऑन वार्म डे, गर्म दिनों में मोर वाटर विल एवेपोरेट, ज़्यादा पानी एवेपोरेट होता है फ्रॉम द लीफ सेल से, सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप, सो ट्रांसपायरेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर 2 विंड ऑन विंड, ठीक है। ऑन विंडी डेज, उन दिनों में जिन दिनों में हवा बहुत ज़्यादा चलती है, वाटर वेपर्स विल बी ब्लॉन अवे एज इट कम्स आउट थ्रू द स्टोमेटा से जैसे ही वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं वो फ़ौरन से हवा उन्हें उड़ा के ले जाती है। सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप, ट्रांसपायरेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नंबर 3 ह्यूमिडिटी ऑन ड्राई डेज, वो दिन जिन दिनों में आपकी हवा में नमी कम होती है, ठीक है। द एयर कैन होल्ड मोर वाटर, एयर जो है वो ज़्यादा वाटर होल्ड करती है, वाटर वेपर्स, सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप, ट्रांसपायरेशन स्पीड अप हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर एवेपोरेट होता है वो एयर ले लेती है, ठीक है। एयर ज़्यादा वाटर वेपर्स होल्ड करती है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। टाइम ऑफ डे, डे का कौन सा टाइम है? स्टोमेटा ओनली ओपन ड्यूरिंग द डे, स्टोमेटा सिर्फ ओपन होते हैं दिन के वक्त इन मोस्ट प्लांट, ज़्यादा प्लांट्स में। सो ट्रांसपायरेशन विल बी फास्टेस्ट देन, तो इसका मतलब है दिन के वक्त ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा होती है। ओके, व्हाट आर द 4 फैक्टर्स? द नंबर 1 टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ होगी, ठीक है। नंबर 2 विंड, ज़्यादा विंड होगी तो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ होगी। ह्यूमिडिटी कम होगी तो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ होगी। टाइम ऑफ द डे, दिन के वक्त ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट। ओके, द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम एज अ प्लांट लॉसेस वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, जैसे कि प्लांट जो है पानी लॉस करता है ट्रांसपायरेशन के नतीजे में। मोर वाटर इज पुल्ड अप इन द जाइलम ट्यूब्स टू रिप्लेस इट, तो ज़्यादा पानी क्या होता है वो मोर वाटर इज पुल्ड अप, ज़्यादा पानी खींचा जाता है इन द जाइलम ट्यूब में टू रिप्लेस इट, जो पानी एवेपोरेट हो गया वेपर्स की फॉर्म में उसको रिप्लेस करने के लिए। जस्ट एज आ ड्रिंक इज़ पुल्ड अप अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, जैसे आप स्ट्रॉ लगाते हैं जूस में, ठीक है। अब आपके मुंह में जब स्ट्रॉ में जो जूस होता है वो आप पी लेते तो बाकी स्ट्रॉ के जो पैक है, जूस का डब्बा है, उसमें से आप पुल अप करते हो, खींचते हो। इसी तरह जब ऊपर पानी ख़त्म हो जाएगा, वाटर वेपर के ज़रिए वाटर एवेपोरेट हो जाएगा तो ज़्यादा पानी उसको रिप्लेस करने के लिए ज़्यादा पानी पुल अप किया जाएगा। किसके ज़रिए? जाइलम्स के ज़रिए। व्हेन यू टेक अ सिप, जब आप सिप लेते हो, ठीक है, बिल्कुल आपको स्ट्रॉ की एग्जांपल दी गई है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, तो आप स्ट्रॉ के ज़रिए पानी पुल करते हो, ठीक है। तो जब आप सिप ले लेते हो, आपका मुंह खाली हो जाता है तो आप दोबारा पुल अप करते हो पानी, ठीक है, ताकि आपके मुंह में और पानी आ जाए या जूस आ जाए, ठीक है। इसी तरह जब वाटर वेपर एवेपोरेट हो जाते हैं लीफ से तो और पानी पुल अप किया जाता है ताकि उनको रिप्लेस किया जा सके। एट द सेम टाइम वाटर एंटर द जाइलम फ्रॉम द रूट्स, उसी वक्त वाटर क्या होता है जाइलम के ज़रिए रूट में एंटर होता है। रूट्स आर कवर इन रूट हेयर, रूट जो हैं कवर होते हैं रूट हेयर से, विच आर टाइनी एक्सटेंशन ऑफ द आउटर सेल ऑफ द रूट, जो कि छोटे छोटे एक्सटेंशन है आउटर रूट के, ठीक है, आउटर सेल ऑफ रूट के एक्सटेंशन है, ठीक। जितने ज़्यादा रूट्स जो होंगे, रूट हेयर्स होंगे, उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा प्लांट जो है पानी सक करेगा। Now turn the page here. Root hairs increases the surface area of the roots. Root
हेयर क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं सो दैट मोर वाटर कैन बी टेकन इन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी सक किया जा सके। दिस फ्लो ऑफ वाटर इन द जाइलम फ्राम रूट्स टू लीफ इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। इस फ्लो ऑफ वाटर को जाइलम से रूट्स, जाइलम फ्राम रूट्स, ठीक है। दिस फ्लो ऑफ वाटर इन द जाइलम, फ्लो ऑफ वाटर जाइलम में फ्राम रूट्स, रूट्स के ज़रिए फिर वहाँ से लीफ तक पहुँचाना, यानी कि रूट्स से लीव्स तक पहुँचाना थ्रू जाइलम। इस फ्लो को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम कहा जाता है। ओके नाउ पेज टर्न करें, बैक वाले पेज पर आए, पेज नंबर 23 पे हेयर इज डायग्राम, ठीक है। ये देखें नंबर 1, वाटर एंटर रूट हेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल। सॉइल से देखें वाटर एंटर हो रहा है, ठीक है, किस में, रूट्स में एंटर हो रहा है, ठीक है। जाइलम ट्यूब है ये, ठीक है, जाइलम ट्यूब इन स्टेम, ये स्टेम में जाइलम ट्यूब है। नंबर 2, वाटर मूव फ्रॉम द सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के ज़रिए सेल टू सेल वाटर मूव कर रहा है, ठीक है। नंबर 3, वाटर इज़ पुश्ड इनटू एंड अप द जाइलम ट्यूब बाय प्रेशर, प्रेशर के ज़रिए वाटर ऊपर की साइड पे मूव कर रहा है। देखिए यहाँ कंसंट्रेशन वाटर की कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। नंबर 4 देखें, वाटर इज़ पुल अप बाय द जाइलम ट्यूब, जाइलम ट्यूब क्या कर रहा है, वाटर को ऊपर लेकर जा रहा है। नंबर 5, वाटर एवेपोरेट फ्रॉम द लीफ सेल इनटू द एयर स्पेसेस, ये देखें ये लीफ सेल्स हैं, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये अपर स्किन है, ये देखिए स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा के ज़रिए पानी बाहर एवेपोरेट हो रहा है। ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, जो ओपन एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। ये ओपनिंग क्या कर रही है, स्ट्रोमा। ये वेन लीफ की वेन है, ठीक है, ये लीफ बना हुआ है। लीफ के ज़रिए पानी कहाँ आया, देखें जाइलम ट्यूब ऊपर लेकर आई स्टेम में, स्टेम से लीफ में गया, लीफ के थ्रू स्ट्रोमेटा के ज़रिए बाहर निकल रहा है। वाटर वेपर पासेस आउट ऑफ द लीफ थ्रू ओपन स्ट्रोमेटा, और ओपन स्ट्रोमेटा के ज़रिए बाहर निकल रहा है। सेम टाइम यहाँ से पानी एंटर हो रहा है और यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। ओके, होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसपायरेशन क्या है और उस पर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता कैसे है। हियर इज़ फ्यू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ओके, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।